So, hey everyone, and welcome back again to the channel. My name is Amartya, and I am a final year MBBS student at IGMS Patna. And I'm really sorry to all of you that I was not active on this channel for the past few days as my exams were approaching and I have to prepare for it. And yet, my exams are coming in the few days and my final exams are still pending. But here I am to help you out, all the students, to all the MBBS students, my juniors, and all the NEET aspirants. So today's video is going to be very helpful for all the MBBS students who are struggling to make notes of their own. And today in this video, I will be discussing the conventional approach to how to make the notes and how to study. And not only that, but I will be also including the AI use, that is the use of the chat GPT, as you have seen on the thumbnail. So I will be telling you how to use the chat GPT to make your notes and how you can make quality notes using the chat GPT. So watch the video till the end and you will be very benefited from this video. So let's begin the video. So this video is going to be divided into two parts. In the first part, we will be discussing about the conventional approach, how you should make the notes and how you should study. So let's start the first part, that is the conventional approach and how you should use the conventional approach in the correct way. So in the conventional approach, what we do, the first thing that we do is to compile the resources that you have. So as you know, in the MBBS, you have a lot of resources to read from and you have to choose the standard ones. So if you are in the first year MBBS and you are going to make notes for the physiology, so you should choose either the Guyton, Ganong or the AKGen, as they are the standard books in India. So you either choose the AKGen, you either choose the Guyton or the Ganong. So you should have at least two books because they are very standard books and you should read and make notes from them. So the first thing is to compile the resources. So just as I have given the example of the physiology, you have to also do in the biochemistry or the anatomy or the any other subjects in your MBBS. So after compiling the resources, here comes the next step. So what is it? So next step में तुम्हें ये करना ये है कि नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें पेंसिल लेना है, बुक लेना है एंड यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग इट फ्रॉम लाइन टू लाइन। तो फर्स्ट और सेकंड ईयर में तुम्हारे पास इनफ टाइम है कि तुम अच्छे से बुक को पढ़ सकते हो, क्योंकि थर्ड और जो फाइनल ईयर है उसमें तुम्हारे पास टाइम थोड़ा तुम्हारे पास कम हो जाता है। और फर्स्ट और सेकंड ईयर की जो पैथोलॉजी और जितनी भी बेसिक साइंस है उसमें पढ़ाई गई है, दैट पेव्स योर पाथ फॉर द प्री फाइनल, फाइनल एंड द इंटर्नशिप ऑल्सो। सो वो बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। अगर तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर में हो तो तुम्हें तो बेसिक से बुक्स को पढ़ना ही चाहिए, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि कैसे पढ़ना है। तो तुम पेंसिल लो, बुक उठाओ और बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करो। तो ऐसा होगा कि स्टार्टिंग में तुम्हें पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? स्टार्टिंग में पढ़ने में टाइम लग सकता है, पहला ही पेज हो सकता है तुम रॉबिन्स पढ़ना शुरू करो पैथो में, एक ही बुक के पहले ही पेज में तुम स्टक हो जाओ। सो अगर तुम्हारे पास पैथोलॉजी में रॉबिन्स है और तुमने एक हर्षमोन की बुक भी रखी है साथ में, तो तुम हो सकता है कि पैथोलॉजी में जो भी चीज़ें तुमने पढ़ी, मान लो पहला पेज पढ़ा और उसमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, तो तुम उसको हर्षमोहन बुक से रेफर करके देख लो, हो सकता है उसमें चीज़ें तुम्हें थोड़ी आसान मिले। अगर फिर भी तुम्हें चाहिए कि उसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तुम उसे समझ नहीं पा रहे हो, तो गो फॉर द इंटरनेट पे भी देख सकते हो, तो उससे तुम्हारे लिए ईज़ी हो जाएगा चीज़ें। तो ये एक हुआ तरीका। अब आता है नोट्स टेकिंग कैसे करना है। ये देखो हम बहुत ही रफली बताया इस चीज़ों को। पैथोलॉजी या फिर स्पेसिफिक कुछ सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग फिर अलग से किसी वीडियो में बात करेंगे कि कैसे पढ़ना है स्पेसिफिकली किस सब्जेक्ट को। तो इस वीडियो में हम लोग नोट्स टेकिंग की बात कर रहे हैं, तो हम लोग नोट्स टेकिंग पे ही फोकस करते हैं। तो सबसे पहले ये करना था कि तुम अपने रिसोर्सेज़ को कंपाइल कर लो, जो तुमने कर लिया, बुक्स को ले लिया और फिर अपने दूसरे एक और बुक को रख लिया, 2 बुक को एटलीस्ट तुम्हें रखना ही चाहिए। तुम्हारे लिए ज़्यादा ईज़ी हो जाता है आंसर्स को लिखना और नोट्स बनाना। दूसरा कि तुम्हें कैसे पढ़ना है, तो तुम्हें लाइन बाय लाइन पढ़ना है चीज़ों को। अगर तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर में हो, तो ज़रूर करना है ये चीज़ें, बुक से पढ़ना है। उसके बाद फिर तुम्हें एक और चीज़ इसी में इम्पोर्टेंट आता है कि जब तुम्हारा ईयर शुरू हो ना, तो तुम ये करो, अगर तुम्हारे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस मिल जाते हैं तुम्हें, यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस, और तुम्हारी यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा पुरानी, मान लो 10, 25, 50 ऐसे कुछ ईयर्स पुरानी है, तुम ऐसा करो कि लास्ट 5 ईयर के यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस को उठाओ, उनको बुक में टिक कर लो, ठीक है? बुक में टिक करने से ये होगा कि तुम्हें नोट मेकिंग के टाइम पे जो-जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके ही नोट्स बनाने पड़ेंगे। वरना बुक तो बहुत ज़्यादा चीज़ें दी हुई हैं बुक में, तुम सारी चीज़ों को बनाने लगोगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है? जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मान लो पैथोलॉजी में तुमसे एपोप्टोसिस पूछा गया है और 5 ईयर्स में 2-3 बार पूछा गया है, तो उसको तुम टिक लगा लो, ठीक है? और नोट्स मेकिंग में तुम पहले उसको प्रायोरिटी पे रखोगे, ठीक है? अब आते हैं हम लोग कि नोट्स मेकिंग जो कन्वेंशनल अप्रोच है कैसा है? तो कन्वेंशनल अप्रोच यही है, तुम बुक से पढ़ रहे हो, बुक में अंडरलाइन कर रहे हो। अब आते हैं कि जैसे तुम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जैसे हम बताया एपोप्टोसिस तुमने जैसे कि मान लो एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, तो तुम उसको अंडरलाइन कर चुके हो। अब आता है नोट मेकिंग का तैयारी शुरू होता है जब नोट मेकिंग का, तो तुम नोट मेकिंग में पहला तुमने हेडिंग डाला एपोप्टोसिस, फिर तुमने उसको बनाना शुरू किया। तो बनाना शुरू करने से पहले तुमने डेफिनेशन लिखा और ऑलवेज़ ट्राई कि जब भी तुम नोट्स बनाना शुरू करो, तो पहला पॉइंट कि तुम उसकी अंडर सर्टेन हेडिंग्स बनाओ। जैसे कि तुम ब्रोंकिक्टिसिस पढ़ रहे हो,
तो ब्रोंकिक्टिसिस में सीधा तुम कुछ भी लिखना शुरू नहीं कर दोगे। तो पहले लिखोगे व्हाट इज़ ब्रोंकिक्टिसिस, उसका डेफिनेशन से शुरू करो। डेफिनेशन के बाद लिखो उसकी एटियोलॉजी लिखो, क्लासिफिकेशन लिखो, उसका क्लिनिकल फीचर्स लिखो, क्लिनिकल फीचर्स के बाद उसका इन्वेस्टिगेशंस लिखो, इन्वेस्टिगेशन के बाद डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट लिखो। तो इस तरह से लिखने से होता ये है कि तुम जब एग्ज़ाम में भी लिखने जाओगे, तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड विद में तुम्हारे पास रहेगा और तुमको ना अगर हेडिंग्स याद रहेगा तो तुम थोड़ा-सा याद करना आंसर्स को बहुत ही ईज़ी हो जाता है। तो नोट्स मेकिंग में पहला चीज़ ये ध्यान रखो, जब नोट लिखना शुरू करो, तो लिखने में पहला चीज़ ये रखो कि जो भी आंसर्स को लिखो, उसको हेडिंग्स पे लिखो, सर्टेन हेडिंग्स पे लिखो और देखो कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए, तो वो भी ऑब्वियसली सर्टेन हेडिंग्स में पूछे जाते हैं। तो तुम्हारे लिए वो लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि तुमको याद करने में भी ईज़ी हो और एग्ज़ाम में भी अच्छे से लिख सको। तो पहला चीज़ है कि हेडिंग्स पे लिखो। नाउ कम्स द सेकंड थिंग। सेकंड थिंग ये है कि जो भी तुम आंसर्स लिख रहे हो, उसको ईज़ी बनाओ, अपने लिए भी और जब तुम एग्ज़ाम में लिखोगे, तो एग्ज़ामिनर के लिए भी वो ईज़ी ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। तो अपने लिए ईज़ी कैसे बनाओगे? तो अपने लिए ईज़ी ये करना है कि आंसर्स को जैसा बुक में दिया है, उस तरह से जो इन स्टैंडर्ड थिंग्स है, जैसे कि किस चीज़ का डेफिनेशन है, जैसे न्यूप्लेशिया का डेफिनेशन है, वो स्टैंडर्ड है, वो चाहिए ही वो बुक का, वो तो लिखो ही। लेकिन जब तुम उसका पैथोलॉजी लिखना शुरू कर रहे हो, तो उसको पूरा पैराग्राफ में नहीं बनाना है कभी भी, क्योंकि जब पैराग्राफ में बनाना किसी चीज़ को शुरू कर दोगे ना, तो तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होगा याद करना और जब तुम एग्ज़ाम में लिखोगे, तो इसे एग्ज़ामिनर के लिए भी चेक करना आसान नहीं होगा। तो मेक the notes in such a way that it is easy for you as well as the examiner when you are writing that same answer in the exam. तो use the tables, use the flow charts, जो हम हमेशा से अपने पहले भी वीडियो में बोले हैं कि टेबल्स और फ्लो चार्ट्स को जब लिखोगे और बहुत बार होता है कि टेबल्स और फ्लो चार्ट्स तो बुक में भी दिए हुए होते हैं, तो उसको सामने से लिख लोगे ज़्यादा ईज़ी तुम्हारे लिए भी रहेगा। और डायग्राम्स को बहुत अच्छा है यूज़ करना। डायग्राम तो यूज़ करना ही चाहिए जहाँ पर भी एप्लीकेबल हो। डायग्राम को लिखने से क्या होता है, बनाने से ये होता है डायग्राम को कि तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाता है, ठीक है? तुम अगर टेक्स्ट जो भी चीज़ें लिखी हुई है, अगर तुमको याद नहीं भी आ रहा है, जैसे मान लो पैथोलॉजी में थायरॉइड कार्सिनोमा है, पेपिलरी थायरॉइड कार्सिनोमा है, उसका तुमने डायग्राम बना लिया, तो डायग्राम से भी बहुत सारी थ्योरेटिकल चीज़ें याद हो जाती हैं, जो तुमको शायद लिखा हुआ शायद याद ना रहे, बट डायग्राम याद रहेगा और वो एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो कैसे-कैसे चीज़ों को नोट्स बनाना है एक बार फिर से रिवाइज़ करते हैं। तो पहला तुम्हें ये करना है कि हेडिंग्स के अंदर नोट्स बनाना है, जब भी कोई चीज़ को लिख रहे हो। दूसरा कि तुमको उसको ईज़ी करना है। ईज़ी करना कैसे? टेबल्स, फ्लो चार्ट्स ये यूज़ करना है। तीसरा, जहाँ पर भी एप्लीकेबल हो पा रहा है, वहाँ पे डायग्राम्स बनाओ, चाहे लाइन डायग्राम्स बनाओ, चाहे कलर डायग्राम्स जो भी है एप्लीकेबल, तो वो डायग्राम्स को बनाओ। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा नोट्स थोड़ा ईज़ी होगा और तुम्हारे लिए अच्छा होगा क्योंकि बेसिकली तुम नोट्स बना क्यों रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पास जब नोट्स बना रहेगा, तो तुम जब फाइनल टाइम आएगा ना एग्ज़ाम के, तो तुमको फिर दोबारा बुक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम्स जब तुम्हारे पास आ जाते हैं और जब तुम बुक्स खोल लोगे, तो बुक खोलने में दिक्कत ये होगा कि तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा कि पढ़ना क्या है, क्योंकि बुक इतना ज़्यादा वॉल्यूमिनस हो जाता है, तो एक अलग ही टेंशन हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करो कि नोट्स बना लो, साल के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक भी टाइम लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फाइनल एग्ज़ाम ज़्यादा मैटर करता है, उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएँगे, ज़्यादा ये ज़रूरी है। तो नोट्स मेकिंग इस तरह से कन्वेंशनली करते हैं हम लोग कि तुम स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, फिर तुम एक जो दूसरा एक बुक रखे हो, जैसे मान लो फिजियोलॉजी में गाइटन है या गेनोंग है और तुमने इंडियन बुक एक ही जान रखा। तो जो भी एकदम जो कंट्रोवर्शियल कुछ लगे कि यहाँ पे कुछ अलग है यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड बुक की तरफ जाओ, जैसे गाइटन की तरफ जाओ, ठीक है? या फिर जो भी रॉबिन्स अगर पढ़ रहे हो, हर्षमन पढ़ रहे हो, आपको ज़्यादा सही लगता है तो रॉबिन्स की तरफ जाओ। तो वो एक चीज़ होता है कि डेफिनेशन वगैरह कुछ लिखना तो उससे लिख लिया या जो भी कंटेंट तुमको ज़्यादा अच्छा किसी बुक में लगे, जैसे रॉबिन्स पे कोई फ्लो चार्ट दिया है, जो यहाँ नहीं दिया हर्षमन में या हर्षमन में कोई अच्छा डायग्राम दिया जो रॉबिन्स पे नहीं दिया है, तो उस तरह से तुमको कंपाइल करके रिसोर्सेज़ को फिर बनाना है, ठीक है? ये तो है कि फर्स्ट सेकंड ईयर में हो तो तुम्हारे पास टाइम बहुत है, तुम ये कर लिए, ठीक है? अब पार्ट 2 है इस वीडियो का जो अब हम लोग बात करेंगे, दैट इज़ हाउ टू यूज़ द एआई दैट इज़ द चैट जीपीटी टू मेक योर नोट्स और आई नो तुम लोग इस चीज़ के लिए बहुत देर से वेट कर रहे हो उस पूरे वीडियो में। तो ये बेसिकली ये चीज़ जो है ना, ये तुम्हारे लिए आई थिंक ये हम प्री फाइनल या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बोलते हैं क्योंकि ये ज़्यादा होगा कि जैसे हम भी बहुत बार इसको यूज़ किए हैं कि जब टाइम नहीं रहता पूरा बुक पढ़ने का, तुम नोट्स पढ़ सकते हो, ज़्यादा ईज़ी है, लेकिन पूरा बुक जो पढ़ रहा है ना, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये सिर्फ़ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही अगर तुम पढ़ोगे ना फाइनल ईयर में, तो भी इतना सारा कंटेंट हो जाता है। तो इसको कैसे अप्रोच करना है? तो चैट जीपीटी में कैसे करना है, चलो इसको हम लोग समझते हैं अभी, ठीक है? तो उसके लिए क्या-क्या प्री रिक्विजिट्स है, ये पहले हम लोग देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि चैट जीपीटी का यूज़ करके जो भी नोट्स बनाना है, इट इज़ नॉट एन अल्टरनेटिव टू द कन्वेंशनल अप्रोच। हम पहले ये बता देते हैं, ठीक है? कन्वेंशनल अप्रोच इज़ द बेस्ट और सबसे बेस्ट है, ठीक है? उसको हम भी फर्स्ट, सेकंड ईयर में यूज़ किए, इनफैक्ट थर्ड ईयर तक उसको यूज़ किए। लेकिन प्री फाइनल ईयर में और फाइनल ईयर में बहुत सारे लोगों को होता है कि बुक नहीं पढ़ पाते हैं या फिर अलग-अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल भी पढ़ना होता है, फिर एग्ज़ाम के लिए पढ़ना होता है, तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इट्स ओके। तो वहाँ पर ये अप्रोच चैट जीपीटी वाला अप्रोच जो है बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। तो इसके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है? सबसे पहला प्री रिक्विजिट ये है कि तुम जो भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, चाहे 1 पढ़ो या 2 भी पढ़ो, तो उस स्टैंडर्ड बुक के तुम्हारे पास पीडीएफ होना चाहिए, ठीक है? आगे हम अभी दिखाएँगे कैसे करना है।
ठीक है? और तुम्हारे पास फ़ोन या तुम्हारा मोबाइल होना चाहिए और चैट जीपीटी तो फ्री है ही, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स बिगिन। चलो आते हैं अब स्क्रीन पर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए हम बता रहे हैं, मतलब फाइनल ईयर, प्री फाइनल ईयर के लिए तो बेसिकली था। तो तुम्हारे पास अगर कोई तुम बुक पढ़ रहे हो, जैसे अगर तुम्हारे पास ईएनटी की बुक है या ऑप्था की बुक है या फिर फाइनल ईयर में पास पीडी या सर्जरी है, तुम उससे भी कर सकते हो। ऐसे तो बुक से भी ईज़ी रहता है, बट अगर तुमको चाहिए कि तुम उसको और कंसाइज़ कर लो, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्ज़ाम में आया है, बस उसको ही करना है, तो ये एक ईज़ी तरीका हो सकता है अगर तुम्हारे पास पीडीएफ है तो, वरना कन्वेंशनल अप्रोच इज़ आल्सो देयर प्रेज़ेंट ओनली। ठीक है? चलो अभी देखते हैं। फंक्शंस ऑफ द लिम्बिक कॉर्टेक्स जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है टॉपिक, तो यहाँ पे इसको कॉपी की। ठीक है? अब देखो यही है कि पूरे पेज में एक साथ नहीं है, तो इसको हम लोग करेंगे ये कि इसको हम लोग एक साथ नोट्स में पूरा कॉपी कर लेंगे, ठीक है? नोट्स में कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पर आधा आया, बाकी यहाँ से थोड़ा-सा, हाँ, ठीक है? कॉपी हो गया, इसको एक जगह पेस्ट कर दो। उसके बाद करना ये है कि सेलेक्ट ऑल कर लो, फिर तुम चैट जीपीटी को ये पेस्ट करके दे दो, ठीक है? जब भी, और बहुत ज़्यादा इसका भी लिमिट है कि बहुत ज़्यादा तुम टेक्स्ट चैट जीपीटी में एक बार नहीं दे सकते हो, उसका सर्टेन लिमिट्स है, तो वो एक बार देख लेना। बहुत ज़्यादा टेक्स्ट एक बार में दे दोगे तो वो भी दिक्कत है। और इसके बाद इसको प्रॉम्प्ट दे दो, समराइज़ द अबव इन कंसाइज़ शेप्ड हाइलाइटिंग एंड यूज़ टेबल एंड पॉइंट्स व्हेरेवर रिक्वायर्ड, ठीक है? अब देखो इसको कंसाइज़ हम करने बोल दिए, तो जो भी डेटा रहा तुम्हारा ओरिजिनल टेक्स्ट का रहा, ऐसा नहीं कि इंटरनेट पर वेग कहीं से भी कोई कंटेंट आ गया, नहीं। जो तुम डेटा दी उसी से कंसाइज़ हुआ। तो देखने में हो सकता है तुमको लगे कि यार बहुत अजीब-सा काम है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बट धीरे-धीरे तुम अगर बहुत ज़्यादा करने लगोगे उसके बाद फिर तुमको ईज़ी लगेगा, ठीक है? तो बेसिकली ये हम भी ट्राई किए, हमको बहुत ईज़ी लगा इसको यूज़ करना। तो देखो यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा इसको ये कॉन्साइज़ करके दे दिया है। इतना बड़ा जो टेक्स्ट था, जो तुम्हारे पास था, तो उसको बहुत हद तक ये कॉन्साइज़ कर दिया है। तो इससे तुम्हारा काम बहुत ईज़ी हो जाता है। सो दिस वाज़ द चैट जीपीटी मेथड आल्सो टू हाउ टू मेक द नोट्स कंसाइज़ली एंड यूजिंग द टेक्स्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक्स ओनली, नॉट फ्रॉम द इंटरनेट। तो तुम्हारे लिए ये भी ईज़ी होगा। तो नोट्स मेकिंग का जहाँ तक बात है फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फॉर ऑल द फाइनल ईयर टिल एनीवन, तो उन सब के लिए कन्वेंशनल अप्रोच भी है और चैट जीपीटी अप्रोच भी। सो इफ यू आर इन द प्री फाइनल और फाइनल ईयर जहाँ पर बेसिकली टाइम थोड़ा कम हो जाता है, सिर्फ़ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना होता है, तो वो चीज़ें सिर्फ़ जब तुमको करना है, बट उसके लिए भी तुमको स्टैंडर्ड बुक्स तुम्हारे पास होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ़ तुम उसको कॉपी पेस्ट करके काम नहीं होगा। तुम उसको स्टैंडर्ड बुक अगर तुम्हारे पास भी है, पीडीएफ भी रखो, ताकि जब तुम स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़ लो, तो तुम्हारे लिए ईज़ी हो जाए। ठीक है? नोट्स तो बनेगा ही, बट स्टिल तुमको एक बार बुक पढ़ना ही चाहिए। अगर नहीं पढ़ पाते तो इट्स ओके, तुम पीडीएफ से भी ऐसे नोट्स बनाकर भी काम कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी तुम ऑब्वियसली कहीं न कहीं से तुम उसको पढ़ ही रहे हो, ऑब्वियसली उस टॉपिक को, चाहे तुम मैरो से पढ़ो, डैम से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो। तो तुम्हारा एक तरफ से कंप्लीट हो जाता है, बट आंसर्स राइटिंग जब एग्ज़ाम की बात आती है फाइनल या प्री फाइनल में, तो थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है, तो उसके लिए ये मेथड बहुत अच्छा है। बट फॉर द फर्स्ट और सेकंड ईयर्स आई थिंक कि कन्वेंशनल अप्रोच ज़्यादा अच्छा है तुम लोगों के लिए। कन्वेंशनल अप्रोच को यूज़ करो, बुक को प्रॉपर पढ़ो, अपने से नोट्स बनाओ, अपने से टेबल्स बनाओ, तो तुम्हारे लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा और तुम बाकी एक्स्ट्रा टॉपिक्स को भी कवर कर पाओगे। क्योंकि फाइनल ईयर में तो चलो टाइम नहीं होता, प्री फाइनल में थोड़ा लोग फाइनल ईयर का भी पढ़ने लगते हैं प्री फाइनल में, तो थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट हो जाता है। बट फर्स्ट और सेकंड ईयर में आई थिंक बहुत ही ज़्यादा टाइम है और तुम्हें तो बुक पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट हम खुद फर्स्ट और सेकंड ईयर तक कोई भी ऐसा कोचिंग मॉड्यूल या कोई भी ऐसा वीडियोज़ यूज़ नहीं किए हैं, यूट्यूब यूज़ किए हैं, नो डाउट यूट्यूब पे बहुत अच्छे रिसोर्सेज़ हैं, तो उसको यूज़ करो और बुक पढ़ो, वो ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है रादर देन यूजिंग एनी कोचिंग प्लेटफॉर्म। सो दिस वाज़ द अप्रोच ऑन हाउ टू मेक द नोट्स एंड आई विश तुम सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो और तुम इसको प्रैक्टिकली करके भी देखो, तुमको शायद अच्छा लगे। तो ये जो एआई वाला जो था, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, अप टू डेट रखना खुद को भी। जब तुम्हारे पास टाइम कम है और तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, तो तुमको उसको यूज़ करना चाहिए। सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, subscribe to this channel, and please share this with all your friends so that they also get benefited, and meet you in the next video very soon. Till then, have a good